So today we will be understanding about pytest, pytest, which is a unit testing framework for Python. Okay, for Python. Now, with the help of pytest, okay, we can create multiple test cases or classes, you can say, and run them at the same time. See, earlier what we used to do, we used to create a particular class, isn't it? Like actions class.py and then execute it. But with the help of pytest, we can run multiple classes, okay, all these classes at the same time. Okay, so that is one of the benefit of having pytest. So for using pytest or for running your test cases with the help of pytest, we have to first install pytest. Okay, we have to install pytest as part of your PyCharm. Okay, PyCharm में आपको ये install करना पड़ेगा. So how to do that? Simply go to PyCharm and go to File, Settings. Okay, File, Settings, and okay. So over here we'll go to Python interpreter. Okay, so project 3 Python interpreter, and click on this plus and search for pytest. Okay, search for pytest. See, अगर आप यहाँ से इंस्टॉल करोगे ना फाइल सेटिंग्स में से, तो ये इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ऐड होगा. okay? बट अगर आप पिप कमांड से करते हो, जैसे हमने किया था पिप इंस्टॉल सेलेनियम, उसी तरह से अगर आप करते हो पिप इंस्टॉल pytest, तो वो एंटायर सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स आप करोगे उन सब के लिए इंस्टॉल होगा. तो बोथ द वेज आर परफेक्टली फाइन, नो इश्यूज, बट दिस इज ओनली फॉर सिंगल प्रोजेक्ट, दैट इज फॉर एंटायर ऑल द प्रोजेक्ट्स. सो pytest सर्च करना है, यहाँ पे आपको pytest दिख जाएगा. ओके, आई थिंक इट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड, सी ये सिलेक्टेड है, मेरे केस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. ओके, आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इट. It's a simple powerful testing with Python. Okay. And you have to, like, if you want to go for a specific version, you can select the version from here. I'm selecting the latest version only, so that is installed. Okay, when you click on install, the package will be installed in your PyCharm. Okay, so this is a basic step. I'll repeat this: file, okay, settings, then go to Python interpreter in your project. So this is my project. Click on this plus icon, install, and then search for pytest. Okay, so now it's over here. So select it and click on the specific version and then click on install package. So it will be installed in your PyCharm. Okay, it will be installed over here. Now what we will do, we will create a new package. Okay, so I will say right click, new, and new Python package, and I will say pytest. You can say pytest examples. Okay? That's where you can give the name, or you can go with Python pytest practice. Okay, enter. Okay, something like this. So we have this pytest practice with us. Okay. Now इसमें जब भी आप टेस्ट क्रिएट करोगे, पाइथन फाइल क्रिएट करोगे, न्यू पाइथन फाइल, we have to start that with the name of test. Okay, we have to start the name of the file with test, and then underscore, and then you can write your test case name or class name, you can say first test case. Okay, so this is my class name, or you can say file name, basically Python file, test underscore first test case. Okay, and in this, say for example, I'll be importing, okay, I'll be saying import pytest so that I can use the classes, and there are specific things I can use for pytest. Now I'll create a method. Okay, I'll create a function. So def
Okay, for creating a function I'll have to say def, and then again function name should start with test. Okay, function name also should start with test underscore. Okay, test underscore, say for example do login. Okay, and then this is, and I will say print uh, login check, something like this, and control S. So this is my test case, and if you see this is a play button coming up over here. Okay, so if you run this, okay, it will execute it. So run pytest, and it should give you, see, collected one item, test, first test case, this is the name of your file, test do login is the function name, and it is passed, and it's like 100%, or login check which you have printed, that is getting printed over here. Okay, so either, सर ये टेस्ट केस के लिए है, yeah, tell me. ये टेस्ट केस के लिए है, This is for test case, for writing your test case. So in case of test लेकिन case में, ये लेकिन ये टेस्ट केस थोड़ी है आप टेस्ट जो केस किस लिखा लिए, है। नहीं नहीं अभी टेस्ट केस नहीं है, अभी तो सिर्फ हमने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, बट आप टेस्ट केस लिखोगे तो एक पर्टिकुलर फंक्शन में ही लिखोगे, राइट? सो इजंट इट, आप एक फंक्शन या मेथड में ही लिखोगे ना टेस्ट केस, आप टेस्ट केस तो ओके कैसे लिखोगे ना, मल्टीपल चीजें होंगी टेस्ट केस में, एक वैलिड डेटा के साथ होगा, इनवैलिड डेटा के साथ होगा, तो वो आपका फंक्शन में ही होगा। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया, लेकिन फंक्शन का जो नाम है वो आपका टेस्ट से स्टार्ट होगा, टेस्ट अंडरस्कोर। फिर आप प्रिंट लिखो या जो जो भी लॉजिक लिखना है वो लॉजिक लिखोगे आप। ओके, तो ये एक टेस्ट केस है, समझो। ओके, अभी हम लोग फिलहाल क्या समझ रहे हैं, वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द फ्लो। यू कैन म्यूट योरसेल्फ Harshit. Then test do, Harshit, please mute yourself, background noise is coming. So do register, okay, and then I will say print uh, do registration, okay? Do registration, something like this, okay? तो ये दो मेरे मेथड्स हो गए या फंक्शन बोल सकते हैं, दो फंक्शन है, एंड उसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट है दोनों में, ठीक है? Now what I can do, I can just say I can go to terminal, okay, I can just go to terminal, let me open the terminal. So it's getting loaded up. Fine. It will show up the, yeah, okay, so now it is coming up like project 3. Okay, I'll just write down pytest, okay, over here. I'll just give a command that is pytest. So what this command will do, it will look for all the functions, or all, you can say all the files, but files which are starting with the name of test underscore, or you can say test, files which are starting with the test. So it is going to pick all those files, python files which are starting with test. So अभी हमारे पास एक ही है, तो इसको अगर मैं pytest को रन करूंगा, okay, तो यहाँ पे if you see it has run that particular file, okay, and it is mentioning collected 2 items, okay, and यहाँ पे आपका दिख रहा है test underscore first test dot py, ये आपकी फाइल का नाम है, ठीक है, pytest backtest, एंड वहाँ पे टेस्ट अंडरस्कोर फर्स्ट tc डॉट पी वाई, ये आपका फाइल का नाम है। और यहाँ पे दो डॉट्स दिख रहे हैं आपको, दो डॉट्स मतलब क्या है, दे आर पास्ट, दो ग्रीन डॉट्स हैं, दे आर लाइक पास्ट, और यहाँ पे आपको 100% है।
तो ये कब मिलेगा, जब आप सिंपली सिंपली pytest लिखोगे। तो बाकी के सारे क्लासेस उसने रन नहीं किए, उसने ये पैकेज फाइंड किया जिसके अंदर टेस्ट से आपका फाइल स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब अगर मैं लिखता हूँ pytest, ओके, -s -v, okay, so this, with this you will see, okay, you will see this verbose, okay, first, so you will see test do login, ये आपका फंक्शन का नाम आ गया। लॉगिन चेक जो प्रिंट स्टेटमेंट है, और इट इज पास्ड। फिर अगेन डू रजिस्टर योर फंक्शन नेम, डू रजिस्ट्रेशन प्रिंट स्टेटमेंट है, और पास्ड आपका लास्ट। पास इसलिए हो रहा है क्योंकि सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट स्टेटमेंट है, सक्सेसफुल हो गया इसलिए पास। तो अगर आपको ये सारी डिटेल्स चाहिए कि प्रिंट स्टेटमेंट भी, फंक्शन का नाम भी, और ये पास जिस तरह से, तो आप ये सिंपली इस तरह से लिख सकते हो, pytest -s -v, ओके। और अगर कोई स्पेसिफिक फाइल रन करनी है, जैसे अगर मेरे पास मल्टीपल फाइल्स होती ना, टेस्ट फर्स्ट टेस्ट केस, टेस्ट अंडरस्कोर सेकंड टेस्ट केस, एंड इफ आई वांट टू रन दिस पर्टिकुलर वन, फर्स्ट टेस्ट केस, तो फिर आपको वो उस तरह से लिखना होता है। ओके, आप यहाँ पे जाके लिखते हैं, पहले तो आपको सीडी करके pytest प्रैक्टिस में मूव करना है उस फोल्डर में। तो हम प्रोजेक्ट से इस पर्टिकुलर इस फोल्डर में मूव हो गए, पैकेज में, और फिर आपको लिखना है pytest, और फिर टेस्ट अंडरस्कोर फर्स्ट टीसी, दैट्स इट। ओके, और फिर आपको लाइक -s -v करके लिख दो, और वो पर्टिकुलर फाइल को वो रन कर देगा। अगर मल्टीपल फाइल्स हैं तो इट्स नॉट अ डायरेक्टरी, .py, we have to write .py also, because it's not a directory, it's a Python file, so we just write .py, .py. So now you can see this is like login check passed. Okay. Yes, anyone has any questions, Harshal? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करते हो। Okay, just a minute. See, नॉर्मल केस में अभी देखो आप क्या करते थे इनिशियली पाइथन बेसिक्स में। यहाँ पे हम लोग, सॉरी नॉट पाइथन बेसिक्स, यहाँ पे अगर वेब ड्राइवर में देखो तो ये अलर्ट हैंडलिंग का प्रोग्राम लिखा था, राइट, हमने, कि जिसमें हम लोगों ने एक ब्राउज़र ओपन किया है, एक गेट मेथड से यूआरएल ओपन कर रहे हैं, और किसी एलिमेंट पे क्लिक करें, ये पूरा एक हमने प्रोग्राम लिखा था ना, एक कोई एक्शन लिखा था। ऐसा ही एक्शन आपका टेस्ट केस बनेगा एक्चुअली। आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, तो वो वेबसाइट पे आप कुछ इंटरेक्शन करोगे, कुछ एलिमेंट पे क्लिक करोगे, कोई एक्शन करोगे, और फिर लास्ट में वेरिफिकेशन करोगे, यस और नो। मैनुअल टेस्टिंग में आप क्या करते हो? मैनुअल टेस्टिंग में अगर आपको एक वेबसाइट दी है, उसमें लॉगिन की फंक्शनैलिटी है, रजिस्ट्रेशन पेज चेक करना है, सर्च फंक्शनैलिटी चेक करनी है, या फिर पेमेंट की फंक्शनैलिटी चेक करनी है, तो उसका एक टेस्ट केस बनेगा, हाँ राइट, ओके। तो वो अगर मैं इस तरह से अलग अलग क्लासेस में बनाता हूँ, अलग अलग फाइल्स में बनाता हूँ, तो मुझे वो पर्टिकुलर फाइल में जाके राइट क्लिक करके रन करना पड़ेगा वो फाइल, राइट, यस और नो, यस राइट। अच्छा, इसके अंदर कहीं पे भी मैंने फंक्शन बनाया है, इसमें सारा का सारा कोड सीक्वेंशियल ऑर्डर में है, यस। से रन करेंगे हमारे 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 टेस्ट केसेस। हमारे जैसे पेमेंट के अंदर ही मेरे मल्टीपल टेस्ट केस हो सकते हैं, है ना। जैसे मैनुअल में अगर मैंने टेस्ट सूट का नाम रखा है पेमेंट, तो पेमेंट के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि चेक पेमेंट फंक्शनैलिटी विद वैलिड क्रेडिट कार्ड। फिर दूसरा टेस्ट केस हो सकता है चेक पेमेंट फंक्शनैलिटी विद इनवैलिड क्रेडिट कार्ड। Similarly, check payment functionality with cash on delivery. Isn't it, Harshil? Getting it? ओके So what I can do is over here.
with the help of test pytest I can do that, right? आपने जावा वाला पोर्शन पढ़ा है, राइट? हाँ तो जावा में हमने टेस्ट एनजी पढ़ा था। हाँ। टेस्ट एनजी, बस टेस्ट एनजी और pytest ऑलमोस्ट सेम। टेस्ट एनजी इज फॉर यूनिट टेस्टिंग, जावा का फ्रेमवर्क है, जबकि पाइथन के लिए pytest है। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर बनाना है तो मैं क्या लेकिन लिखूंगा? पाई टेस्ट में हम टेस्ट केस लिखेंगे कैसे? तो वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अभी जैसे आप लिखो टेस्ट अंडरस्कोर पेमेंट, ओके, ये मेरा फाइल हो गया, दिस इज हाँ। माय फाइल, ओके, पेमेंट की। ये इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट pytest, ओके, pytest इंपोर्ट कर लिया। अब अगर आपको पेमेंट की कोई एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी चेक करनी है, जैसे टेस्ट क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ओके, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ये मुझे चेक करना है, ठीक है? तो इसका मेरा एक फंक्शन आ गया, ये एक फंक्शन है, और इसमें मैं लिख देता हूँ कि मेरा क्रेडिट कार्ड का व्हाट इज कोड है, ओके, क्रेडिट कार्ड कोड, ओके, दिस वे। और इसी तरह से मेरी दूसरी भी फंक्शनलिटी हो सकती है, जैसे डेफ टेस्ट अंडरस्कोर डेबिट कार्ड पेमेंट, उसकी भी, वो भी मुझे चेक करना रहेगा। मतलब जो टेस्ट केसेस है वो टेस्ट केसेस को मेथड में कन्वर्ट करना है? हाँ, मेथड में लिखना पड़ेगा ना, मेथड में लिखोगे नहीं ना। नहीं, जो टेस्ट केसेस है, हाँ जो टेस्ट केसेस है उसको हमें मेथड में लिखना है। हाँ, उसको मेथड में लिखना होगा ना। हम सीक्वेंशियल ओके। ऑर्डर में अगर लिखेंगे, इस तरह से हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखेंगे, तो ऐसे तो मुझे कितनी सारी पाइथन की फाइल बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे तो अगर समझो 50 या 100 टेस्ट केसेस हैं, तो मुझे 50 फाइल बनानी पड़ेगी ऐसे, नहीं ना? अगर समझो पेमेंट में ही मुझे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी, ईएमआई, सब पेमेंट अगर अलग अलग तरीके से चेक करना है, तो मैं क्या अलग अलग फाइल बनाऊंगा और उसको इंडिविजुअली रन करूंगा? दैट इज नॉट द राइट अप्रोच, राइट, इजंट इट? तो मैंने पेमेंट का या एक फाइल बनाया है, पेमेंट की एक फाइल है, और उसके अंदर मेरा टेस्ट क्या है? क्रेडिट कार्ड पेमेंट से चेक, कार्ड से चेक क्या है, डेबिट कार्ड से चेक क्या है, डेबिट कार्ड से चेक कर, ओके। और अगर मुझे ये क्रेडिट कार्ड रन ओके करना है तो मैं सिर्फ इसको रन कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे रन टेस्ट है, तो क्लिक ऑन इट, रन पाई टेस्ट फॉर दिस, तो सिर्फ वो क्रेडिट कार्ड का चेक करके मुझे दे रहा है, इजंट इट? समझ ओके। रहे हो? अभी ओके, अभी ये हाँ आपका क्रेडिट कार्ड का पास हो गया, राइट, ये सक्सेसफुली रन हो गया। से फॉर एग्जांपल, अभी अगर मैं लिखता पाई टेस्ट, ओके, आई वुड हैव जस्ट रिटन पाई टेस्ट, सिर्फ इतना मैं लिखूंगा, तो पाई टेस्ट क्या करेगा? मेरे कितने टेस्ट फाइल्स हैं? एक फर्स्ट टेस्ट केस है और दूसरा पेमेंट है, तो हाँ। ये वो सारी फाइल्स ढूंढेगा, ओके, वो ये सारी फाइल्स ढूंढेगा जिसके आगे टेस्ट लिखा हुआ है, और उन्हें पिक करेगा, ओके। ठीक, इसका क्या यूज क्या है पर, लेकिन ये सिर्फ फाइल ढूंढेगा, ये यूज है इसका? ढूंढ के रन करेगा ना, हर्षिल, आपको रन करनी ओके होगी ना फाइल, इंडिविजुअली थोड़ी ना रन करोगे आप। अगर ओके, जैसे ढूंढ 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 के रन करेगा। हाँ, अभी ये पेमेंट की फाइल है और उसमें आपके मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं, ओके तो अगर आप इस फाइल को रन करोगे तो यही टेस्ट केसेस रन होंगे सिर्फ। ओके तो ये वाले टेस्ट केसेस कौन रन करेगा? ये कब रन होंगे? जब आप यहाँ पे आओगे तब ये रन होगा। तो मुझे तो ऐसा नहीं करना होगा ओके ना, मैं इंडिविजुअल फाइल में जाके तो रन नहीं करूंगा ना एक एक टेस्ट केस को या पूरी ओके फाइल को। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? मैं सिर्फ पाई टेस्ट लिख रहा हूँ और एंटर दे रहा हूँ, तो वो जितने ओके भी टेस्ट से स्टार्ट वाले फाइल्स हैं वो सब ढूंढेगा और उनके अंदर जितने भी टेस्ट केसेस हैं उनको रन करेगा। सी, ओके टेस्ट अंडरस्कोर पेमेंट डॉट पी वाई, टेस्ट फर्स्ट टीसी डॉट पी वाई, ये दोनों फाइल को उसने फाइंड आउट किया, कितने कलेक्टेड है? 4 आइटम्स कलेक्टेड। और पेमेंट में दो टेस्ट केसेस थे, दोनों ग्रीन डॉट से सिंपलाइज हैं, दोनों पास हो गए। फर्स्ट टेस्ट केस वाली फाइल में भी ये दो डॉट्स, ये दो डॉट्स, ये दो डॉट्स है, मतलब ग्रीन डॉट्स, मतलब पास हो फेल होगा पता कैसे चलेगा? गए। एफ लिखा और होगा, रेड डॉट एफ 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 होगा? एफ लिखा होगा, ओके ओके, मैं फेल करके देता हूँ आपको, फेल करके देता हूँ इसमें। फॉर दैट यू जस्ट हैव टू राइट assert
लिख दो इसमें कि ट्रू, ओके ट्रू, ट्रू इक्वल्स फॉल्स, कैपिटल आएगा शायद, ट्रू इज, इसको रन करते हैं फिर से। तो ओके, ये फेल हो गया, आपका एसर्शन एरर आ गया, एसर्ट ट्रू इक्वल्स फॉल्स, ये फेल हो गया। तो 1 फेल्ड 3 पास्ड, एक फेल हुआ और 3 पास हो गए। और यहाँ अगर आप ऊपर देखोगे तो ये एसर्शन फेल हुआ दिखा रहा है, दिस इज एसर्शन एरर। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, पेमेंट में दोनों टेस्ट केस पास हो गए, ग्रीन डॉट, लेकिन जो फर्स्ट टेस्ट केस था उसमें लॉगिन वाला फेल हुआ है, तो उसने एफ दिखाया यहाँ पे, और जो ये डू रजिस्टर हम्म। वाला है वो पास हो गया, तो ग्रीन डॉट दिख रहा ओके। है। ओके, तो इस तरह से वो आप कितने भी क्लासेस बनाओ, कितने भी फाइल्स बनाओ, उनमें जितने भी टेस्ट केसेस होंगे वो टेस्ट केस को वो रन कर देगा। क्यों? क्योंकि हमने टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट किया। तो आपका फाइल का नाम टेस्ट अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, आपका जो मेथड है वो भी टेस्ट अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होना चाहिए, तो ही वो रिकॉग्नाइज करेगा और रन करेगा। तो यहाँ पे मैंने दो फाइल्स को रन किया एक ही साथ, कैसे? जस्ट बाय राइटिंग पाई टेस्ट, ओके, जस्ट बाय राइटिंग पाई टेस्ट। और इसमें अगर आप हाइफन वी कर दो तो वो वर्बोज यानी सबके साथ सारे इंफॉर्मेशन के साथ रन करके दिखाएगा। सी, इसमें दिखा रहा है ना, डेबिट कार्ड पेमेंट पास्ट, डू लॉग इन फेल्ड, डू रजिस्टर पास्ट, ओके, क्रेडिट कार्ड पास्ट, अंडरस्टूड? ओके, समझ गया। Yeah, Sarfraz, did you got it? Yes. Okay. So this is how, with the help of pytest, we can run our test cases. Okay. Uh, okay, multiple test cases into different files all together at the same time. We don't have to go in individual files and have to run them. Okay. We can run each and every file. Okay. At a one instance only. Fine. Clear? ये तो हमने यहाँ से रन किया विद द हेल्प ऑफ टर्मिनल। अगर आपको यही चीज़ रन करनी है यहाँ से, जैसे हम करंट फाइल से करते थे ना, तो अगर आपको करना है तो आप एडिट कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है एंड गो टू एडिट कॉन्फ़िगरेशन, एंड एडिट कॉन्फ़िगरेशन यू जस्ट हैव टू से प्लस, प्लस, प्लस करना है, एंड यहाँ से आपको पाई टेस्ट सेलेक्ट करना है, और ओके पाई टेस्ट सेलेक्ट करना है। मेरे केस में ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे पाई टेस्ट पैक सेलेक्ट करता हूँ। ये आपको दिखाई रहा है सारे डिफरेंट। मैं यहाँ पे पाई टेस्ट पैक, क्योंकि ये पैकेज का नाम है मेरा, तो मैं पैकेज को ही सिलेक्ट करता हूँ, पाई टेस्ट पैक। यहाँ पे आपको टारगेट में ये पर्टिकुलर जो है वहाँ पे फोल्डर आपको देना पड़ेगा कि भाई प्रोजेक्ट 3 में आपका पाई टेस्ट पैक है, पैकेज उसको सिलेक्ट करना है, ओके, और यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी में भी आपको वही सिलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो अब जब अगर आप इसको रन करोगे तो यू डोंट हैव टू राइट ऑल दोज थिंग्स, आपको टर्मिनल पे जाके लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से डायरेक्टली प्ले करना है एंड इट विल गेट एग्जीक्यूटेड, लाइक ऑल द फाइल्स विल गेट एग्जीक्यूटेड एंड यू शुड गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। सो क्रेडिट कार्ड को या टेल मी। Can you show me that again? Like, Okay, go to sure. Just edit click on, yeah, configuration. just click on this and click on edit configuration. Yes. You have to click on plus, add new configuration, okay, and then you have to select pytest. So the moment you select pytest, okay, see pytest in bin, it's coming in like pytest in bin. You just have to give the target, okay, where you have to, like where you want to run. So I want to run in project 3, and then project 3, inside project 3 I want to go with this one, pytest pack. So just click on it, so it will get selected over here, so it should come over here. I'll cancel this, so that will be listed out over here.
So this is a Okay. configuration you are creating. Okay. So when you just click on it, okay, it should run all your test cases within that particular package. If you have, say for example, any other package, then you can select that package and you can run it from here. Okay. Otherwise, you have to go to terminal and write pytest and then mention the file name, specific file name. Okay, so this particular test case got failed because we have made an assertion like true equals false. So in case of verifying things, we have to use this assert clause. Okay, assert thing. With the help of assert, we will be comparing different values, or you can say matching different values, and then we can run them. Fine. I hope this is clear up till this part, guys. Understood? Yes. Yes. Now, say for example, before login and before registering for a user, and also before doing some payment, what I want to do, I want to run or run a method wherein I should open a browser, isn't it? Because in case of action class also, you saw that we are first of all opening a browser, opening a URL, and then performing actions. Right. So for the same thing, if I want to write that portion, but then I don't have to call it again and again. Okay, so I can do at this two levels, at the two levels. Okay, one is function and the other one is module level. So for writing at a function level, you just have to say define, okay, define a function, and you just have to say setup. You have to start with setup only. Setup function, okay, and in bracket also you have to say function, okay, and then colon, and then you can say print, and then print launching browser, okay, launching browser code. This should come over here. And then again, if you want to like close the browser, then you can say def tear down, okay, tear down, and then function, tear down function, and you just have to again say function, okay, in brackets. Just a minute, let it come, function, and inside that you can write the code related to closing browser, okay, closing browser, okay, this much. Now if I run this, okay, pytest and practice, or you can say, I will say this is first test case. Okay? So I'll just say, I'll go to terminal, okay, and I will say pytest, and I want to run this specific file only. So I will say pytest test underscore, okay, first, okay, first test case dot py. I just want to run this particular file, okay, and then I will say hyphen s hyphen b and then run it. So you should see, okay, there was a error failed message also. So you should see that launching browser code got executed first, then do registration got executed, and then closing browser code got executed. Okay, this much, closing browser code. So closing browser code and launching browser code, in between that do registration got executed. Similarly, launching browser code and closing browser, in between login check got executed. Yes, Harshal, tell me. सर ब्राउजर तो ओपन ओपन हुआ नहीं. नहीं नहीं, मैंने अभी सिर्फ आपको जस्ट क्या कहते हैं फ्लो बता रहा हूँ. ओके, अगर आपको करना है तो लॉन्चिंग ब्राउजर का कोड तो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट है. ओके, लॉन्चिंग ब्राउजर का कोड तो आपको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा ना इससे. ओके. हाँ, मैं अभी आपको सिर्फ फ्लो समझा रहा हूँ कि रियल टाइम पे आपका किस तरह से प्रोग्राम बनेगा.
या आप कैसे बनाओगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ये जो मैंने बताया आपको टेस्ट केस बताया, लेकिन टेस्ट केस से पहले डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो एक्शंस करने पड़ेंगे ना, जैसे ब्राउजर ओपन करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, यूआरएल ओपन करना है, और फिर आपके टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट होंगे। और जब एक बार टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट हो गए, कंप्लीट हो गए, तो आपको डेटाबेस कनेक्शन क्लोज करना है, ब्राउजर क्लोज करना है। तो ये आपके लास्ट में एक्शंस हुए। तो अगर आप चाहते हो कि आपके हर टेस्ट केस से पहले कोई एक्शन परफॉर्म हो और हर टेस्ट केस के बाद कोई एक्शन परफॉर्म हो, तो हर टेस्ट केस से पहले कुछ करना है तो सेटअप, और हर टेस्ट केस के बाद में करना है तो टीयर डाउन। So this is going to run after each and every test case of yours, this method, and this will run before every test case of yours. ये आपका एक टेस्ट केस है, इससे पहले हमेशा ये रन होगा। और ये टेस्ट केस होगा मतलब पहले लॉन्च हुआ ब्राउजर कोड, फिर आपका लॉगिन चेक होगा, और उसके बाद फिर टीयर डाउन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ये आपको सीक्वेंस मैं समझा रहा हूँ कि किस सीक्वेंस में रन होगा ये। Okay, right now I'm not writing a real code कि हम कोई application open कर रहे हैं. I'm not explaining that. I'm explaining the flow कि how this is going to work. Okay, understood up till this part? Yes, guys, understood this part? Yes. Sure. Or it was just to say yes. अब मुझे मॉड्यूल लेवल पे करना है। मॉड्यूल लेवल मतलब कि सभी कुछ एग्जीक्यूट हो उससे पहले। तो उसके लिए आपको लिखना है, या फिर आप बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर क्लास में अभी तो हमने क्या किया, मेथड से पहले कि ये मेथड से पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये मेथड से पहले ये एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने भी आपके मेथड्स हैं, डू लॉग इन, डू रजिस्टर, जितने भी टेस्ट केस मेथड्स हैं, फंक्शंस हैं आप बोल सकते हो, जितने भी आपके टेस्ट केस फंक्शंस हैं, उन सबसे पहले एक और उन सब के बाद कुछ एक एक्शन होना चाहिए। तो वो अगर आपको करना है तो फॉर दैट यू हैव टू राइट डेफ, ओके, डिफाइन सेटअप। सेटअप तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ फंक्शन के बदले क्या आ जाएगा, मॉड्यूल। ओके, मॉड्यूल, एंड देन यू हैव टू से मॉड्यूल, मॉड्यूल लेवल पे रन कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, लास्ट में कोड, और फिर आपका कोड आ जाएगा, उसके बाद आपका कोड आ जाएगा। तो अभी मैं कोड के बदले सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ गाइस। राइट नाउ यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द फ्लो। So creating DB connection, okay, and then you have to say def, okay, tear down, sorry, tear down module, and this also at module level, okay, and then I'll be writing the code related to this portion. So I'll say print closing database connection. So basically I will be writing code related to database, closing of database connection, okay. I'll be writing that code over here, okay. बट अभी फिलहाल तो हमें सिर्फ जो फंक्शनल फ्लो समझना है वही हम उसके लिए लिख रहे हैं। चलो अब इसको रन करते हैं हम लोग। लेट्स रन दिस। Okay, so now you will see one test case failed and one test case is passed, and if you see the functional flow, okay, यहाँ पे देखते हैं, let's understand over here. So you can see creating database connection, okay, it started, then launching browser code, that is this one, function level पे, फिर आपका लॉगिन चेक, दैट इज टेस्ट केस, एंड क्लोजिंग ब्राउजर कोड आपका उसके बाद में, ओके। उसी तरह से अगेन लॉन्चिंग ब्राउजर कोड हमने लिखा एक ही बार है, तो लॉन्चिंग ब्राउजर कोड, टेस्ट केस,
और आपका फिर लास्ट में आ जाता है क्लोजिंग ब्राउजर कोड। ये आपका फंक्शन लेवल पे, ओके। लॉन्चिंग ब्राउजर और क्लोजिंग ब्राउजर आपका फंक्शन लेवल पे, और क्लोजिंग डेटाबेस कनेक्शन और क्रिएटिंग डेटाबेस कनेक्शन ये मॉड्यूल लेवल पे, यानी इन दोनों के बीच में आपके ये सारे टेस्ट केस का पूरा पार्ट आ गया, ओके। तो सबसे पहले आपका क्लास, क्लास के जितने भी मेथड्स हैं उन सबसे पहले सेटअप मॉड्यूल, और उन सारे मेथड्स के बाद टीयर डाउन मॉड्यूल। और सेटअप फंक्शन कब होगा? वो हर टेस्ट से पहले सेटअप फंक्शन और हर टेस्ट के बाद टीयर डाउन फंक्शन। तो ये फ्लो मैं आपको आज समझा रहा था, okay? This is the flow I am explaining you. I hope this is clear, guys. Understood this part? Yes. Okay. So I'm just explaining you the flow कि how you can write the code. You will be, हम इस तरह से कोड नहीं लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया कि भाई अगर आप, लेकिन we will be dividing the entire code into different areas or different parts, okay, in different methods basically, okay. Fine, Harshil understood this part. So these are called as test fixtures, okay, these are called as test fixtures, ये fixtures कहलाते हैं, okay, these are called as fixtures. Now we will understand about test fixtures with decorator, okay, we will understand fixtures with the help of decorators. So let's create a new file and we'll understand that portion. So I will say new Python file, and I will say test, हमेशा test से ही start करना है आपको, कोई भी pytest का बना रहे हो तो test से start करना, and I will say test fixture with decorators, okay, test fixtures with decorators. And what I will do, I will copy this entire code, okay, let me just copy this entire code, Control A, Control C, and Control V. Okay, this is the entire code I have copied. Now instead of writing this setup module, okay, I will just say, I'll just remove this portion. I'll remove this portion. So this is setup, okay, and before this I will say @pytest, okay, I will say @pytest dot fixture, okay, and fixture में you have to give the scope. So scope equals, and scope equals is, this is for module, right? हमने setup module किया था, tear down module किया था, तो test fixture pytest fixture क्या हो जाएगा हमारा अभी? fixture module, ये module हो गया, इसका scope क्या है? fixture का module है, okay? और यहाँ पे setup के बाद आपका आ जाएगा portion yield. yield जो है, yield is for tear down, तो आपको tear down अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. I'll just copy this or cut this and paste it over here. So I will just close this part. I will complete this part. Okay, यहाँ पे आपका method आ जाएगा. Setup is a method. तो define setup method, creating database connection, और yield जो है आपका tear down method है. तो हम जो यहाँ पे लिख रहे थे setup module और उसके अंदर module, this is replaced with this portion. तो हम बता तो रहे दोनों में हैं से कौन सा यूज कर रहा है? you can use any one of them. You can use any one of them. You can use this also, not an issue with it. Okay, should not be a problem. Okay, so pytest fixture scope is module. This will be working at a module level. Okay, and similarly, okay, you can go for, अब मैं setup दोबारा नहीं लिख सकता because already setup है, तो I will say before, because already setup करके method बना रखा है मैंने, तो I will say before method, because this, ये टेस्ट इंजन में अगर आप देखोगे जावा में तो बिफोर मेथड होता है, आफ्टर मेथड होता है, तो सिमिलरली सेम पैटर्न यहाँ पे भी है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे @pytest डॉट
फिक्सर, ओके, और ब्रैकेट के अंदर स्कोप इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा हमारा स्कोप, फंक्शन लेवल, ओके, फंक्शन लेवल, बिकॉज हम लोग इस फिक्सर को फंक्शन लेवल पे रन करेंगे। डबल ब्रैकेट्स हो गई आपके लॉन्चिंग ब्राउजर। अब यहाँ पे क्या आएगा, टीयर डाउन के बदले क्या, yield, okay, टीयर डाउन के बदले will be yield, and then I will say print closing browser. So instead of tear down we have to write yield, okay. तो अगर आप इसको इसको मैं क्या करता हूँ, I'll just copy this, okay, I'll just cut this and paste at this level, okay, और यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। तो आप इसके बदले ये पूरा लिख रहे हो, बेसिकली ये लिख रहे हो ये, और सेटअप के बदले, ओके, I'll just copy setup as well, copy and then hash sign and this one, और यहाँ पे टीयर डाउन के बदले सेटअप आ जाएगा, सेटअप आ जाएगा, ओके, दिस वे। तो सेटअप आ गया आपका और टीयर डाउन आ गया, ये दोनों आप इसके उससे अचीव कर सकते हो, both of them you can achieve with the help of this, okay. सेम वे यही सेटअप और टीयर डाउन मॉड्यूल लेवल पे you can achieve with the help of this, okay. Now यहाँ पे मुझे मेथड में तो बताना पड़ेगा, ओके, क्योंकि जो मेरा पिक्चर बनाया मैंने स्कोप के साथ, तो आई हैव टू से मुझे यहाँ पे कौन सा कॉल करना है, तो से फॉर एग्जांपल आई वांट टू कॉल बोथ ऑफ देम, तो आई विल से सेटअप कॉमा बिफोर, ओके, बिफोर दोनों फंक्शन कॉल करना है, और मुझे यहाँ पे सिर्फ बिफोर ही कॉल करना है, दैट्स इट, ओके। नाउ गो इनटू अ टर्मिनल, so this is tfwd, okay, so I will say yes guys, tell me. लास्ट वाले में सेटअप क्यों नहीं आएगा सर? आ सकता है, मैंने नहीं लिखा ताकि आपको आइडिया है कि जहाँ जहाँ सेटअप लिखोगे वहाँ पे वो सेटअप वाला भी रन होगा, लॉन्चिंग, क्लोजिंग डीबी और क्रिएटिंग डीबी, तो आप लिख सकते हो, ओके, बट मैंने जानबूझ के नहीं लिखा ताकि आपको आइडिया आए। बेसिकली आप एक ही बार लिखोगे तो वो सब पूरा आ जाएगा, राइट। सेटअप इज लाइक कि मॉड्यूल लेवल पे, तो मॉड्यूल में तो ये दोनों ही आ गए ना, लॉगिन और रजिस्टर, तो यहाँ नहीं भी लिखोगे तो वो इस इन सभी टेस्ट केस के बाद सेटअप तो रन होगा ही होगा, राइट। बिफोर से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ नहीं लिखूंगा तो फिर लॉगिन ब्राउजर और क्लोजिंग ब्राउजर, ओपनिंग ब्राउजर और क्लोजिंग ब्राउजर, ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर समझो मैं बिफोर नहीं लिखता हूँ किसी एक में, ओके। सेटअप तो दोनों में ही रन होगा, राइट। सेटअप अगर लिखूंगा किसी एक में भी तो मॉड्यूल लेवल पे, यानी दोनों टेस्ट केस के पहले आपका क्रिएटिंग डीबी और क्लोजिंग डीबी हो जाएगा, राइट। लेकिन ये जो है फंक्शन लेवल का स्कोप फंक्शन, ये कब होता है, इस टेस्ट के पहले और इस टेस्ट केस के बाद, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सेटअप लिखा है। तो अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल में फिर से रन करता हूँ, फिर से रन करता हूँ मेरा कोड, तो डू लॉगिन में लॉन्चिंग ब्राउजर और क्लोजिंग ब्राउजर नहीं रन होना चाहिए, है ना। सी लॉगिन चेक जो है उसके पहले आपका लॉन्चिंग ब्राउजर और क्लोजिंग ब्राउजर नहीं हुआ, जबकि डू रजिस्ट्रेशन से पहले लॉन्चिंग ब्राउजर भी हुआ और क्लोजिंग ब्राउजर भी हुआ। और सेटअप तो मैंने किसी एक में लिखा है, तो सेटअप एक में लिखोगे तो क्लोजिंग डीबी और क्रिएटिंग डीबी कनेक्शन, ये तो स्टार्टिंग में और ये एंड में ही होगा। आई होप दिस इज क्लियर गाइस, अंडरस्टूड दिस पार्ट। मॉड्यूल जो होता है वो सारे टेस्ट केस से पहले और सारे टेस्ट केस के बाद मॉड्यूल, फंक्शन हर टेस्ट केस के पहले हर टेस्ट केस के बाद फंक्शन, ठीक है। तो सेटअप आप किसी एक में भी लिख दोगे तो वो मान के ही चलेगा कि अब सेटअप रन करना है तो पहले आपका मॉड्यूल लेवल का
और सारे टेस्ट केस के बाद आफ्टर मॉड्यूल लेवल यानी यील्ड वाला पार्ट। ओके, सो यील्ड वाला पार्ट आफ्टर वाला पोर्शन, टीयर डाउन, और ये आपका सेटअप है। क्लियर गाइस, अंडरस्टूड दिस पार्ट? समझ आया थोड़ा बहुत? यस, नो? थोड़ा थोड़ा समझ आया सर। ठीक है, तो तरीके अलग हैं लिखने के, बाकी काम एक ही कर रहा है। मैंने यहाँ पे जो लिखा है, ओके, सेम वो फंक्शन इस तरह से कर रहा है। तो अगर मैं आपको नोटपैड में बता दूं, तो यहाँ पे आप ऐसा समझो, जब भी आप सेटअप बनाते हो, ओके, मॉड्यूल लेवल का, तो वो पहले रन होगा, और टीयर डाउन आपका मॉड्यूल लेवल का लास्ट में रन होगा, और इसके बीच में आपका आ जाएगा सेटअप फंक्शन लेवल, और इसके अंदर आपका टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट अंडरस्कोर समझो TC1, फिर आपका टीयर डाउन हो जाएगा, टीयर डाउन, ओके, अंडरस्कोर फंक्शन। सिमिलरली इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे टेस्ट केस 2, ओके, इस तरह से। तो ये अगर फ्लो आपको समझ आ रहा है कि सेटअप मॉड्यूल हमेशा पहले और टीयर डाउन मॉड्यूल हमेशा लास्ट, सेटअप फंक्शन इस लेवल पे हर टेस्ट केस से पहले, टीयर डाउन फंक्शन लास्ट में, उसी तरह से सेटअप फंक्शन पहले, टीयर डाउन फंक्शन लास्ट में। ओके, सो दिस वे यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ इंस्टेड ऑफ सेटअप मॉड्यूल फंक्शन, मेथड का नाम या फंक्शन का नाम ऐसे लिखने से बेटर है, या ऐसे लिखने के अलावा भी आप इस तरह से लिख सकते हो, the one we have said, test fixtures with decorators. So these are nothing but decorators. Decorators means आप ये fixture बता दे रहे हो कि this is the fixture. So at the rate pytest dot fixture, the scope is module. तो इस method का जो scope है वो module level पे है, और यहाँ पे आप fixture बता रहे हो scope is equal to function. तो ये जो method है function है उसका scope function level पे है। ओके, उसके अंदर फिर लॉजिक आ जाएगा। यील्ड आपका टीयर डाउन रिप्रेजेंट करता है, ओके, यील्ड आपका टीयर डाउन रिप्रेजेंट करता है, और बाकी तो आपके फंक्शंस हैं। ओके, तो यू कैन राइट इन दिस मैनर or you can write in this manner, both are perfectly fine, but these are called as like for using fixtures with decorators. एंड जैसे आपने यहाँ पे अभी सेटअप और या फिर बिफोर लिखा है ना, आप इसको मार्कर भी यूज कर सकते हो, यू कैन यूज मार्कर, तो यू कैन जस्ट से एट द रेट pytest, ओके, डॉट मार्क, pytest डॉट मार्क, डॉट यूज फिक्चर्स, और यूज फिक्चर्स के अंदर फिर आपको ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में मार्कर लिख देना, फिक्चर लिख देना। तो यहाँ पे देखो फिक्चर्स और स्ट्रिंग है, तो मुझे अगर फिक्चर लिखने, सॉरी, जस्ट माय माउस इज, so I want to write it before I, so in that case I don't have to write it over here, फिर मुझे यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, so you can go with this way also, you have created a marker। तो जैसे हम फंक्शन के अंदर हम एक फिक्चर का नाम लिखते हैं, ये फिक्चर्स बनाए हमने और उसका नाम यहाँ लिखते हैं, उसी तरह से ये फंक्शन में अगर आपको कोई पर्टिकुलर फिक्चर यूज करना है, यू कैन यूज दिस मार्कर, दिस इज कॉल्ड एज मार्कर, एंड देन यू कैन यूज दिस फिक्चर ओवर हियर। सिमिलरली यहाँ पे सेटअप लिखने के बदले आई कैन जस्ट से एट द रेट pytest, okay, dot mark, okay, dot use fixtures, and then you can say what was it, setup, right? So double quotes में setup, that's it। तो ये जो आपके फंक्शन के नाम है वो आपको यहाँ पे लिखना है, ओवर हियर।
तो वही काम करेगा जो काम पहले कर रहा था, यहाँ ब्रैकेट्स में लिख के कर रहे थे वही काम इसके थ्रू होगा. These are called as your pytest markers. Okay, these are called as pytest markers. Okay, you are marking that particular function. Okay, you are marking that particular function with a marker. Okay. Clear, guys? Understood this part? So we will learn more about markers and assertions tomorrow, and parameterization. Okay, tomorrow we'll keep up till this point. So what we learned how to create a pytest, how to install pytest, and then how to create a first test case with the help of this test underscore. We created basic two methods, okay, login and registration, and then we understood about this setup function, teardown function, and setup module, teardown module. The functioning, or you can say the sequence which they follow. So this is the sequence they follow. Now way of writing, okay, we understood differently. So the way could be this particular way: pytest.fixture scope module, and then with setup and yield, before and yield, and then markup. Okay, so you can practice this code, and if you didn't understood any topic, you can ask me right now if you have any questions or doubts right now, or you can ask me tomorrow as well. Once you practice this portion and you didn't understand, you are not able to understand why this thing is used or why this line has been written. Okay, you can definitely ask me tomorrow as well.